for a reaction between the substances A and B is given by rate is equal to K A the power N B the power M, ठीक है, on doubling the concentration of A, ठीक है जी, A दी concentration अगर डबल कर दिए and halving the concentration of B, the ratio of the new rate to the earlier rate will be, ये दसना आप ट्राई करोगे, मैंने लगता सारे ज्यादातर सारे आंदा ही होना है, ठीक है, 1/2 m plus n to the power n minus n, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, देख लो मैच कर लो, जिन्होंने आंदा है वो ट्राई करी जाओ नाल नाल, ठीक है। किस तरीके ਨਾਲ करना है, ਤੁਹਾਨੂੰ रेट दिता होया है, रेट ਆਪਾਂ r मान लेने, कितना दिता होया है k a दी पावर n b दी पावर m, ठीक है जी। वो कहंदा की करना है, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ a ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, मतलब a ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ 2a ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੁੱਟ, ਤੇ b ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, b ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, b/2, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਨਵਾਂ ਰੇਟ r ਡੈਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, k a ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂ 2a ਦੀ ਪਾਵਰ n, b ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ b/2 ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਾਮਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ m नीचे बाहर आ गई, नाल की आ गया k a ਦੀ ਪਾਵਰ n b ਦੀ ਪਾਵਰ m, ठीक है, किदे कोल आ गया r डैश ਤੇ, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਰੇਟ, ਤਾਂ r ਡੈਸ਼ ਕਿਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n upon 2 ਦੀ ਪਾਵਰ m, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n minus m, ਕੀ ਆ ਗਿਆ r ਦੇ ਇਕੁਅਲ, नीचे ला जो r डैश upon r किदे इक्वल आ गया 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n minus m, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਿਊ ਰੇਟ upon ओल्ड रेट दी रेशियो आ गई किदे इक्वल 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n minus m, ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਰੇਟ ਟੂ ਦਾ अर्लियर रेट, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n minus m, ठीक है जी। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है, ठीक है जी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 मिनट वेट करो, मैं क्वेश्चन खोल रहा हूँ। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है सारे नू, स्क्रीन शो हो रही है सारे नू, चलो देखो आ क्वेश्चन है, जिन्हों आंदा है ट्राई कर लो। देखो क्वेश्चन की कह रहा है, क्वेश्चन की कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ, कलर कोई होर ले लेने हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कहते एक रिएक्शन दी हुई है x2 + y2 गिव्स 2xy, ठीक है,
ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਟ एक हैगी है नेट रिएक्शन, एक ही अपने को नेट रिएक्शन दी हुई है। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਪ 1 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਟੈਪ 1 ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, x2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, x + x, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ x + y2 gives xy + y, ਆ ਕੀ ਹੈ ਫਾਸਟ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਲੋ, ठीक है। थर्ड दे विच की होएगा, x + y gives xy। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦਾ ਆਨਸਰ। A order 2 slow step, order 2, ठीक है। बाकी होर किन्ने जिन्हें ज्वाइन किए हुए है, मनप्रीत कौर, मीनाक्षी राजन, नवनीत कौर, शरभ, सुखमन कौर, हाँ जी सारे दसो। तो देखो सारे ने आंसर की दिता है, 2 आंसर दिता है। तो देखो 2 जो आंसर की है गलत है, क्यों गलत है। तो देखो ये अंदर सब तो पहले आप रेट लिखते हैं, कल की करवाया गया सी तुहानू, रेट किदे ते डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप ते डिपेंड करता है। तो स्लोएस्ट स्टेप केड़ा है, सेकंड वाला, ठीक है जी। तो मैं रेट कांस्टेंट सारे लिख देना है। अगर फॉरवर्ड K1 होएगा, बैकवर्ड K2 होएगा, ਇਹਦਾ K3 बन जाएगा, ਇਹਦਾ K4 बन जाएगा, ਤੇ ਇਹਦਾ K5 बन जाएगा। ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, K3 * x * y2। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1 + 1 ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਤਾ, 1 + 1 ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਤਾ, 2 ਲਿਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਲੋਅਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ x ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ y2 ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ x ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਨੈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ, x ਤਾਂ ਨੈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ x ਕੀ ਹੈਗਾ, x ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ। x ਕੀ ਹੈ, इंटरमीडिएट है, ठीक है जी। x की है इंटरमीडिएट है, ना कि रिएक्टेंट। x रिएक्टेंट नहीं है, x इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट की ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेप ले लो। देखो सेकंड वाले स्टेप तो आप रेट लिख लिया, फर्स्ट वाले स्टेप च की है इक्विलिब्रियम है अपने को। तो आप की लिखांगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किहदे इक्वल हुंदा सी, फॉरवर्ड किहदे इक्वल हुंदा, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट दी कंसंट्रेशन की है x अपॉन रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन कितनी है, x2, ठीक है। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, x ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ x2। ਤਾਂ x ਲੈ ਜਾਓ ਉਧਰ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, x इज इक्वल टू x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K3 ਅਪਨ K4 x2, ठीक है जी। ਸਕੁਅਰ ਉਧਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, x ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, K3 ਅਪਨ K4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 x2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, ठीक है जी। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, आ x की वैल्यू ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ x ਕੀ ਸੀਗਾ, ओ सॉरी K1 K2 आएगा, सॉरी K1 K2 आ जाएगा, ठीक है, K1 K2 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल थल्ले देख लिया मैं, K1 K2 आएगा, ठीक है, क्योंकि K1 K2 है ना फॉरवर्ड ते बैकवर्ड, ठीक है जी। तो देखो x की वैल्यू जो पुट करांगे की बनेगा, रेट किहदे इक्वल आ जाएगा, K3 * K1 अपॉन K2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਨਾਲ x2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 y2, ठीक है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, 1/2 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3/2, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1.5। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 1.5, ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, याद रखना है ਜਦੋਂ भी ਤੁਸੀਂ
हाँ रिपीट कर देना है कि ध्यान च रखना है ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਫਾਸਟ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਲੋ ਸਟੈਪ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ x2 y2 gives 2xy, ਇਹਦੇ 3 ਸਟੈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਰਡਰ ਨਿਕਾਲ ਦੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੋਐਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੋ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਰੇਟ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ k3 x y2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ x ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ x ਨਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ x ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਿਖਤਾ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता फॉर रिएक्शन 1, फर्स्ट रिएक्शन वास्ते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हुंदा सीगा k, k किदे इक्वल हुंदा है फॉरवर्ड रेट अपॉन बैकवर्ड रेट, k1 अपॉन k2 which is equal to the concentration of product अपॉन concentration of reactant। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ये समझ नहीं आया कि x रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स च नहीं है, आया कि x, हाँ जी मैम, देखो देखो आपा नेट रिएक्शन की लिखी सी x2 y2 gives 2xy, x दे टर्म x2 फाइंड करना है। हाँ जी मैम, x दी टर्म च x2 फाइंड करांगे। फिर दोबारा दसा, दोबारा मैम देखो गीतिका मैम हुणे ज्वाइन होया, दोबारा देख लेना, नहीं तो देखो मैं दोबारा दस देना है। नेट रिएक्शन तुहानू दित्ती हुई है, इहदे अकॉर्डिंग हाँ जी की कह रहे हो, देखो आप जो भी रेट लिखना है स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग रेट लिखना है, ठीक है, ठीक है जी। बट जो आप ध्यान नाल देखिया जो स्लो स्टेप, दोबारा ही दसन लगा मैम गिनी मैम, देखो स्लोएस्ट स्टेप दे विच जेड़ा रेट लिखिया था आपां नूं पता है जेड़ा आपां ऑर्डर लिखदे सीगे, ऑर्डर की कहंदे सीगे, ऑर्डर की है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਮ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ x ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ x ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ x ਕੀ ਇਕੁਇਲਿਬ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैं इत्थे लिख दिना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल K दे नाल लिखदे हां, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ KF upon KB which is equal to the product concentration upon reactant concentration, ठीक है जी। ਤਾਂ ਇसी ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ x2 x plus x रिएक्शन ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाता। फॉरवर्ड रेट की है K1, बैकवर्ड की है K2, प्रोडक्ट दी कंसंट्रेशन x into x, रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन x2, ठीक है जी। x into x होएगा की बन जाएगा x दा स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन x2, ठीक है। x दी वैल्यू कट लांगे, x स्क्वायर किदे इक्वल आ जाएगा, x2 उधर चला जाएगा K1 अपॉन K2 into x2, ठीक है जी।
एक्स की दे इक्वल आ जाएगा अंडर रूट k1 k2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਤੇ x2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1/2 ਤੇ ਜਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ x ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट चलिए स्क्रीनशॉट ले लो लेना थे। जस्ट एग्जांपल ना देखो, जस्ट तुसी मैथड समझो कि मैथड पॉइंट बना लो दिमाग दे विच कि स्लो स्टेप ते ही डिपेंड करूगा, बट जे स्लो स्टेप दे विच रेट लिखन ते आपां फटाफट की करना है, जदों लिख दिंने आपां फटाफट कैलकुलेट करन लग जन्ने पावर च, ध्यान दे लेना है कि वो इंटरमीडिएट तां नहीं हैगा, जे इंटरमीडिएट होया तां उहनूं रिमूव जरूर करवाना है, ठीक है, बस इन्ना ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहंदा तानू एक रिएक्शन दी हुई है, सिंगल स्टेप वन स्टेप रिएक्शन है, रिएक्शन की दी है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, ठीक है जी। वो कहंदा हाउ विल द above rate of reaction change if the volume of the vessel is diminished to 1/3 of its original volume, will there be any change in the order of the reaction? Will there be any change in the order of reaction with volume change? हाँ जी, करोगे ट्राई? हाँ जी, करोगे ट्राई? दसोगे नवा रेट के पुराने रेट दे किन्ने टाइम्स होएगा? तो देखो जी आपा मैं करवा देना है, देख लो इधर इस रिएक्शन आ रिएक्शन दी आपा नु सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ਇਹਦਾ अगर रेट लिखिए रेट किदे इक्वल होएगा k into NO दी पावर 2 into O2, ठीक है जी। आ किदे इक्वल है R दे इक्वल है, ठीक है। आ रेट अपने कोल ओल्ड वाला रेट है, ठीक है। वो कहंदा हुन अपने कोल सपोज कर लो एक वैसल सीगी, ठीक है, जिदे अंदर आपा ये सारे रिएक्टेंट पाए हुए सीगे, वैसल किसी V वॉल्यूम दी सी, कहंदा हुन वो वैसल नु की करता घटाता ते ओदा वॉल्यूम कितना हो गया V/3 हो गया। तो तुसी मेनू आप दसो जे वॉल्यूम घट जूगा तो कंसंट्रेशन की होएगी, वध नहीं जाएगी? जे V वॉल्यूम ते कंसंट्रेशन C जदों वॉल्यूम घटाता ते कंसंट्रेशन कितनी होगी 3 गुना होगी 3C बन गई, ठीक है जी। तो नवा रेट किवें लिखांगे R डैश किदे इक्वल होएगा K NO दी कंसंट्रेशन की हो जाएगी 3 टाइम्स NO दा स्क्वायर इनटू O2 दी कंसंट्रेशन भी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो सॉल्व कर लो, K 3 दा स्क्वायर 9 12 जाएगा NO इनटू 3 इनटू O2 9 इनटू 3 27 हो जाएगा ते KNO द स्क्वायर इनटू O2, ठीक है। आ की बन गया पुराना रेट, तो R डैश की इक्वल आ जाएगा 27 इनटू R, तो न्यू रेट की होएगा पुराने रेट दे 27 गुना होएगा, ठीक है। ठीक है जी, पता लग गया? ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलिए ਆਪਾਂ। हाँ ऑर्डर सच ऑर्डर भी रहता अपना। विल देयर बी एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दसो मैनू ऑर्डर ते कोई चेंज होएगा ना? ऑर्डर ते दा फर्क ही नहीं पैना, क्योंकि ऑर्डर की हुंदा है कंसंट्रेशन दी पावर हुंदी है। ठीक है, कंसंट्रेशन दी पावर तो कांस्टेंट रही तो ऑर्डर कितना रहेगा? ऑर्डर रिमेन्स सेम। ठीक है, ऑर्डर की रहेगा सेम रहेगा। ते जे वो पूछ लेंदा कितना ऑर्डर है इस रिएक्शन दा, ऑर्डर कितना होएगा? ऑर्डर कितना होएगा? 2 + 1 कितना आ जाएगा? 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक है जी। ठीक है, चलिए अगे नेक्स्ट इरेज कर दा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन becomes दो मिनट। The rate of a gaseous reaction becomes half when the concentration when the volume of this vessel is doubled what is the order of reaction? ठीक है जी, करोगे ट्राई। वो कहता एक गैसियस रिएक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਡਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। रिएक्शन मैम सपोज करनी है गैसियस रिएक्शन, कुछ नहीं दिता उन्हें, होर कुछ नहीं दिता, ऑर्डर सेम ही रहू। सेम मैम सेम आपको पता ही नहीं। फर्स्ट है, सेकंड है, जीरो है, केड़ा ऑर्डर बनेगा? चीनू गोयल फर्स्ट ऑर्डर, बाकी फर्स्ट नहीं गिन्नी मैम तुक्का ला रहे हो? ਐਵੇਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? k r ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਸਟੈਪ ਪੜੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਅ ਗੈਸੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਕਮਸ ਹਾਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? r/2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਸਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਵੈਸਲ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਡਬਲ। v ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? 2v ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, c/2 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की हो जाएगी? अद्धी रह जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो नीचे की है 2 दी पावर 1, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? n ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਇਹ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਡਰ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके ना करना तुसी। ठीक है, चलिए अगे। ठीक है जी, चलो
देखो कुछ नहीं कीता मैं कि एक जनरल रिएक्शन लिख ली, रिएक्टेंट ਜਿਹੜਾ प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ k r ਦੀ ਪਾਵਰ n ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਗੈਸੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਸੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, r/2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਰੇਟ ਅਪਨ 2 ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ k। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, वॉल्यूम च वधा देंगे, कंसंट्रेशन जिन्नी सी उस तो अद्धी रह जाऊगी ठीक है जी। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट दी पहले जिन्नी सी ओदी हाफ होगी ठीक है। तो अपने को बन गया रेट अपॉन 2 इज इक्वल टू के आर अपॉन 2 दी पावर n। तो मैं दोवें पासों कंपेयर कर लिया, इत्थे 2 दी पावर 1 है, इत्थे 2 दी पावर n है, दोवां नूं इक्वेट कर लिया। जो बेस सेम हुंदा है पावर्स भी सेम हो जांदियां हैं, तो n इक्वल टू 1 आ गया। n की हुंदा अपने को ऑर्डर हुंदा है, तो ये किहड़ी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने को बन गई ठीक है जी। ठीक है, आर अपॉन बी लग रहा सी, आर अपॉन बी नहीं जी, आर अपॉन ओके ओके ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन ठीक है जी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन किस तरीके नाल आपां निकालने हैं ते किस तरीके नाल क्वेश्चन उन्हां दे बनदे हैं ठीक है। मैं तुहानूं दस दिंदा हुणे आपां की कर चुके हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ला लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू जिवें लिखते सी आपां के ए दी पावर एन बी दी पावर एम ठीक है। एन ते एम की हुंदे है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुंदे है, ए बी की हुंदे है, रिएक्टेंट्स हुंदे सीगे ठीक है जी। हुण आपां किस तरीके नाल इंटीग्रेटेड फॉर्म लिख सकते हैं इन्हां दी, तो सब तो पहले आ जांदा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सब तो पहले आपां लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किस तरीके नाल लिखांगे, एक दो करके दिखा देना है, वही तुसी लर्न करनी है ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो है किस तरीके नाल लिखांगे, फॉर एग्जांपल सब तो पहले आप रिएक्शन लिखांगे, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है ठीक है, रेट किदे इक्वल होएगा के रिएक्टेंट की पावर, जीरो ऑर्डर है रिएक्टेंट की पावर कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। रेट ਨੂੰ मैं लिख सकता है माइनस डी आर अपॉन डी टी ठीक है जी, इक्वल टू के डी टी उधर ले जाओ, माइनस भी उधर पे दो, डी आर के इक्वल आ जाएगा माइनस के डी टी इक्वल आ जाएगा ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स की बन जाएगा, इत्थे कर देना डी आर माइनस के डी टी, डी आर की इंटीग्रेशन करांगे आर बन जाएगा ठीक है, जीरो टू आर करांगे, ये जीरो टू टी कर देंगे, माइनस के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी टी की इंटीग्रेशन टी प्लस नाल की आ जाएगा, इंटीग्रेशन का रूल हुंदा है जो आप सॉल्व करते हैं नाल की आ जाता है, एक कांस्टेंट सी आ जाता है ठीक है। हुण कांस्टेंट सी दी आपां की करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपां कहांगे एट टी इक्वल टू जीरो, जो टाइम की है जीरो सीगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है आर नोट, आप सपोज कर ली, तो पुट करो आर की वैल्यू आर नोट पुट कर दो, टी की वैल्यू जीरो माइनस के इंटू जीरो प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई आर नोट निकल के आ गई, इतने पुट कर दो की बनेगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट ठीक है जी। उत्ते लै जाओ आर माइनस आर नोट कि इक्वल आ जाएगा माइनस के टी इक्वल आ जाएगा ठीक है, के कि इक्वल आ गया आर नोट माइनस आर अपॉन टी। तो ये की आ गया फर्स्ट जीरो ऑर्डर वास्ते रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई ठीक है, आर नोट माइनस आर नोट की है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर की है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक है। ये एक्सप्रैशन तुसी लर्न करने हैं ठीक है, क्योंकि जे लर्न कर लोगे जो क्वेश्चन सॉल्व करांगे उदों तुहानू बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ठीक है जी। तो इस करके एक्सप्रैशन तुसी समझने हैं किस तरीके ना कर रहे हैं एक एक स्टेप, ताकि पेपर दे विच अगर फर्स्ट आ जाता तुहानू सैकेंड आ जाता तो तुसी बना सकोगा ठीक है। ठीक है देन देखो इन्ना लिख लिया,
देखो अगे की करांगे, नेक्स्ट देखो इना करन तो बाद आपां की कवांगे, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ t ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ a, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, टाइम t ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ x ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ x ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ a x, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ a, फाइनल कितनी बन गई a x, इत्थे वैल्यूज पुट कर दो, k किदे इक्वल सीगा r0 माइनस r अपॉन t, r0 दी वैल्यू कितनी a, r दी कितनी a x अपॉन t, a ना a कट्टिया गया, k किदे इक्वल आ गया x अपॉन t दे, ठीक है जी, x की है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जे तुसी इनू डेरिवेशन नु समझोगे ताइयों तानू वैल्यूज पता लगणगियां, x की है, r0 की है, r की है, a x की है, a x जे पेपर दे विच पूछ ले a की x की हुंदा है लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन रह गई रिएक्टेंट दी जो प्रोडक्ट बन गया सीगा, ठीक है, तो इस करके तुसी एक एक स्टेप नु समझना है, क्योंकि पेपर दे विच कोई भी चीज पूछ लैंदा है कि दसो रिएक्टेंट दी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब ए पूछा हुंदा है, लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन कितनी है a x है, प्रोडक्ट दी कंसंट्रेशन कितनी है x है, तो इस तरीके नाल तुसी पेपर दे विच सॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है जी, ये पता लग गया जीरो ऑर्डर दा। ठीक है, उस तो बाद देखो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कोई दस सकता मैनू की हुंदी है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की हुंदी है, जे आप बाकी सारे रेज कर दिए तो आप हाफ लाइफ देखिए की होएगी, तो हाफ लाइफ की हुंदी है जी वो टाइम जिदे अंदर कंसंट्रेशन की हो जाए रिएक्टेंट दी अद्धी रह जाए, ठीक है, ठीक है जी, उन्होंने आप की कह देने हैं हाफ लाइफ कह देने हैं, ठीक है, ऐ करते हैं हाफ लाइफ बाद चो करते हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर कर लेने हैं, फर्स्ट ऑर्डर नाल ही कर लेने हैं, देन आप इकट्ठे ही हाफ लाइफ सॉल्व कर लांगे, उस तो बाद आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नु ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਟ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਲਿਖੀਏ ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ k r ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ठीक है जी, रेट नु मैं लिख सकता है माइनस डी आर अपॉन डी टी, किदे इक्वल आ जाएगा k इंटू आर, आर नु नीचे लै जाओ डी टी नु उत्ते लै जाओ, डी आर अपॉन आर किदे इक्वल आ जाएगा माइनस के डी टी दे इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी, इंटीग्रेशन कर दो दोवें पासे 0 टू आर 0 टू टी, तो तुहानू पता है डी आर अपॉन आर दी इंटीग्रेशन की हुंदी है लॉग आर, ठीक है जी, माइनस के टी प्लस सी, ठीक है, फिर वही एट टाइम t इक्वल टू 0 r किदे इक्वल होएगा r नोट दे, तो c दी वैल्यू कितनी आ जाएगी पुट करन ते ln r नोट, ठीक है जी, तो पुट कर दो इत्थे c दी वैल्यू दे अंदर पुट कर दो ते तुहाडे को की बन जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln r नोट, की बन जाएगा ln r माइनस ln r नोट इज इक्वल टू माइनस kt, ठीक है जी, kt किदे इक्वल आ जाएगा ln r नोट माइनस ln r, ठीक है, kt किदे इक्वल आ जाएगा ln r नोट अपॉन r, ठीक है, k किदे इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन t ln r नोट अपॉन r, ठीक है, ln नु log च कन्वर्ट करना है 2.303 बाहर आ जाएगा t log r नोट अपॉन r,
ठीक है जी। एक ही आ गया रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, रेट कांस्टेंट आ गया किदे वास्ते, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे। ठीक है जी। हाँ जी, इन्ना कर लिया जी सारे ने, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। हाँ जी, टाइम ओवर होने वाला है, दोबारा ज्वाइन कर लो।